Hello everyone. Today I am going to teach you the first chapter of the book Flamingo of class 12th, which is titled as The Last Lesson. It's written by Alphonse Daudet. When we talk about the introduction to the chapter, it was written in the year around 1870 to 71 when the Prussian forces under the King Bismarck attacked and captured some districts of France. The French districts of Alsace and Lorraine, they went into Prussian hands as Prussia defeated France in this particular war. The new Prussian ruler discontinued the teaching of French in the schools of these two districts, and the French teachers were asked to leave. And so the teacher M. Hamel could also no longer stay in his school. When we talk about Prussia, during the ending of the 19th century, it constituted of Germany, Poland, and there were some parts of Austria too. Looking at the present scenario, both these districts, Alsace and Lorraine, are now a part of France itself. After the World War One जब end होने वाला था इन द ईयर 1918, अभी एंड नहीं हुआ था, 1918 में फ्रांस ने इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को दोबारा से जर्मनी से टेक ओवर कर लिया था. So from the period ranging between 1870 to 1918, both these districts, Alsace and Lorraine, were under Germany, whereas both these districts were, the people living in both these districts were originally French people. Alphonse Daudet is also a French writer. He was born in 1840 and he died in 1897 at an age of 57 years. He was a French novelist and short story writer. Formerly, he was a school teacher also, but he quit his job to make a living as a journalist in Paris. And he took to writing, his poems collected into a volume called Les Amouresses. So basically, in this chapter, we are going to read about the confusion, the dilemma of the people living in these two districts of France, Alsace and Lorraine. जब सडनली एक दिन उन लोगों को ये पता चलता है कि अब उनसे फ्रेंच पीपल होने का अधिकार छीन लिया गया है. दे आर नो लॉन्गर फ्रेंच पीपल, दे आर नाउ अंडर जर्मनी. तो सडनली उनके ऊपर जब ये अवेकनिंग होती है तो उस अवेकनिंग पर उस छोटे से गांव के एक छोटे से स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों और ओल्ड विलेजर्स पर इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, इसको बहुत ब्यूटीफुली अल्फोंस डॉडे ने इस स्टोरी में हाईलाइट किया है. द स्टोरी इज़ प्रेजेंटेड from the point of view of a small boy, around 10 to 11-year-old boy. He's named as Franz. It's a narrative aspect, and the story begins by saying, I started for school very late that morning and was in a great dread of scolding. फ्रांस जब उस मॉर्निंग स्कूल के लिए निकलता है तो ही वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड, उसे बहुत डर लग रहा होता है. ही थॉट दैट ही वुड बी स्कोल्डेड, टीचर उसको स्कूल में स्कोल्ड करेंगे, डांटेंगे, उसे डांट पड़ेगी. ड्रेड इज़ फियर, स्पेशली क्योंकि एम हैमल ने उस दिन कहा था दैट ही वॉज गोइंग टू क्वेश्चन दैम ऑन पार्टिसिपल्स. उस दिन उन्हें होमवर्क में पार्टिसिपल्स के रूल लर्न करने थे, विच इज़ अ ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट. लेकिन फ्रांस उस होमवर्क को प्रिपेयर नहीं करके आया था. सो ही वॉज ड्रेडफुल, ही वॉज अफ्रेड फ्रॉम being scolded by his teacher M. Hamel. Basically, there are two protagonists, two main characters in the story. One is Franz, a small boy who's studying in the school of M. Hamel, and the other is the teacher M. Hamel. And I did not know the first word about them. और फ्रांस की प्रॉब्लम ये थी कि उसे पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता था. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. एक मोमेंट के लिए फ्रांस को लगा कि आज का दिन वो स्कूल में स्किप करता है, वो स्कूल नहीं जाएगा और दिन कहीं बाहर ही स्पेंड कर देगा. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. दिन बहुत वार्म था, बहुत ब्राइट, बहुत अच्छा दिन था. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. इवन एज ऑफ द वुड पे, वुड्स इज़ जंगल, जंगल के किनारे पर बर्ड्स की चर्पिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. और सॉ मिल के पीछे ओपन फील्ड में प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे थे. इट वॉज अ वार्म डे. विंटर सीजन में जब वार्म डे होता है तो वो बहुत अच्छा दिन होता है. एवरीबडी लाइक टू स्पेंड टाइम अंडर द सन.
बर्ड्स भी चर्प कर रहे हैं, तो वो बहुत ब्यूटीफुल नेचुरल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है और फ्रेंड्स को अट्रैक्ट कर रहा था कि वो आज स्कूल ना जाकर एक दिन बाहर बिता ले, स्कूल बंक कर ले. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स. और अगर स्कूल की बात की जाए तो ही वॉज टू बी प्रिपेयर्ड विद द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स जो उसे आते नहीं हैं, तो बाहर दिन स्पेंड करना उसे ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था रादर देन गोइंग टू स्कूल. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. लेकिन फ्रांस के अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी, इतनी एबिलिटी थी कि वो अपने आप को रेजिस्ट कर सके, अपनी इन टेम्पटेशंस को रोक सके. तो उसने अपनी इस टेम्पटेशन को कंट्रोल किया एंड ही हरिड ऑफ टुवर्ड्स द स्कूल. ऑन द वे व्हेन ही पास द टाउन हॉल, रास्ते में एक सिटी का, एक विलेज का एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग थी जिसका नाम था टाउन हॉल. उसके बाहर बहुत क्राउड लगी हुई थी बिकॉज देयर वाज अ बुलेटिन बोर्ड आउटसाइड द टाउन हॉल. और पिछले 2 सालों में जितनी भी बैड न्यूज़ फ्रांस अल्सेस के लोगों को मिली थी वो सब इसी टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड से मिली थी. तो व्हेन फ्रांस नोटिस दैट देयर वाज अ क्राउड आउटसाइड द टाउन हॉल, उसके मन में यही क्वेश्चन आ गया कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. अब क्या मामला हो सकता है, अब क्या रीज़न होगा कि इतनी भीड़ इकट्ठी है, अब क्या हुआ होगा. पिछले 2 सालों में चाहे कोई भी वो बैटल हारे हों, कोई ड्राफ्ट हो, कोई कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर हों, हर बुरे से बुरा न्यूज़ उन्हें इसी बुलेटिन बोर्ड के थ्रू मिला था. तो ऑब्वियसली अब फ्रांस का वरिड होना नेचुरल था. देन एज आई हरिड एज फास्ट एज आई कुड गो. तो लेकिन फ्रांस अभी कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके ही रीच द स्कूल. The blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You'll go to your school, get to your school in plenty of time." Bub is referred to as a small boy, छोटे boy को बोलते हैं. तो जब वो जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा था, this was other reason due to which he wanted to avoid the school. 2 रीज़न थे उसके स्कूल ना जाने के उस दिन. One was he was not prepared with the homework and the other was he was getting late to the school. तो स्कूल टाइम पर पहुंचने के लिए वो जल्दी जल्दी चलने लगा. ऑन द वे ही मेट अनदर करेक्टर. रास्ते में उसे एक करेक्टर मिला जिसका नाम था वॉचर, जो एक ब्लैक स्मिथ है, लोहार है, लोहे का काम करता है. वो अपने अप्रेंटिस के साथ वहाँ पर था. अप्रेंटिस इज़ हिज ट्रेनी, जिसको वो काम सिखा रहा है. तो वो बुलेटिन बोर्ड के बाहर ही बुलेटिन पढ़ रहे थे. उसने पीछे से फ्रांस को आवाज़ देकर कहा, "डोंट गो सो फास्ट बब, आराम से जाओ, यूल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम." नाउ देयर इज़ अ पन इन द स्टेटमेंट. इसका एक मीनिंग तो ये है कि वो उसे मना कर रहे हैं कि तुम ज़्यादा जल्दी मत जाओ, स्कूल पहुंचने में टाइम है, अभी आराम से पहुंच जाओगे. एंड द अदर रीज़न वाई ही इज़ मेकिंग दिस स्टेटमेंट इज़ कि तुम्हारे स्कूल जाने में तो अब तुम्हें बहुत टाइम पड़ा है, कि कल से तो तुम्हें वैसे भी जर्मन पढ़नी है, तुम अब फ्रेंच नहीं रहे हो, तुम्हें फ्रेंच नहीं पढ़नी पड़ेगी, तो इसलिए स्कूल जाने की जल्दी क्या है, अब आराम से जर्मन सीखते रहना. सो इन दिस स्टेटमेंट देयर इज़ अ पन. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी. फ्रांस को लगा कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है और वो जल्दी जल्दी स्कूल पहुंचने की कोशिश करने लगा. एंड व्हेन ही रीच्ड द स्कूल, एम हैमल्स लिटिल गार्डन. एम हैमल जो टीचर हैं वो स्कूल में ही ऊपर रहते हैं, तो वो उनका घर भी है, स्कूल भी है. उसके बाहर छोटा सा गार्डन था. व्हेन ही रीच देयर ही वॉज ऑल आउट ऑफ ब्रेथ. वो सांस उसकी फूली हुई थी, वो तेज़ भागते हुए पहुंचा था. Now here the usual scene of the school is described कि जब भी स्कूल यूजुअली शुरू होता था ऑन अदर डेज, तो स्कूल में काफ़ी बसल होता था. बसल इज़ नॉइस, बहुत शोर रहता था जो बाहर स्ट्रीट तक भी सुनाई देता था. देन देयर वाज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क. डेस्क में बैठने के लिए जब फ्लैप्स को खोला और बंद किया जाता है तो उसकी आवाज़ होती थी. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिजन. जब बच्चे यूनिटी में एक साथ लेसन्स को रिपीट करते थे वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से, और अपने कानों पर हाथ रखकर, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके. एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल. और टीचर एम हैमल के हाथ में एक रूलर रहता था जिसको वो बीच बीच में टेबल पर रैप करते रहते थे, बजाते रहते थे. ये यूजुअल सीन था. बट दैट डे, उस दिन सब कुछ डिफरेंट था. इट वॉज ऑल सो स्टिल. आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन. नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट that Franz had counted on the commotion. Count on means to trust, to rely, depend करना, and commotion is disturbance. फ्रांस ने ये सोचा था कि उस दिन स्कूल में बहुत डिस्टर्बेंस होगी लाइक द यूजुअल डेज, तो अगर वो लेट हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, इस शोर शराबे में, क्लास की डिस्टर्बेंस में वो अपने डेस्क तक पहुंच भी जाएगा
और कोई उसे देखेगा भी नहीं. बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. लेकिन उस दिन तो सीन बिल्कुल ही डिफरेंट था, ऑपोजिट था. उस दिन तो सीन ऐसा था जैसे कि आज संडे मॉर्निंग हो. जिस दिन स्कूल बंद होता है तो बिल्कुल ही शांति होती है, ऐसा एटमॉस्फेयर था स्कूल के अंदर. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स. अभी क्लास में पहुंचा नहीं है फ्रेंड्स, उसने बाहर से ही देख लिया अपने क्लासमेट्स को जो ऑलरेडी अपनी प्लेसेस पर, अपनी जगह पर बैठे हैं. एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. और एम हैमल यूजुअली जिस रूलर को बजाते रहते थे बीच बीच में टेबल पर, आज वो उनकी आर्म के नीचे, उन्होंने अपने हाथ के नीचे रखा हुआ है. एंड ही इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द क्लासरूम, आगे पीछे घूम रहे हैं. और सब कुछ बिल्कुल शांत है, बेंचेस भी ऑक्यूपाइड हैं, हर कोई अपनी जगह पर सेटल डाउन है. तो ऐसे में अंदर जाना फ्रेंड्स को बहुत एम्बैरेसिंग लगेगा. आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी. तो उससे दरवाज़ा खोल के अब सबके सामने अंदर जाना था. एंड यूजुअली इट हैपन्स ऑल्सो वेन एवर समबडी इज़ लेट इन द क्लासरूम, तो हर किसी की अटेंशन उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है. एंड द पर्सन नेचुरली टेंड्स टू ब्लश, उसको शर्म आएगी ऐसे एटमोसफियर में अंदर जाते हुए. यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. ब्लश एम्बैरेसिंग फील करना, और कितना फ्राइटेंड, कितना डरा हुआ था मैं उस दिन, आप इमेजिन कर सकते हो. बट नथिंग हैपेंड. उसे डर भी लग रहा था कि टीचर कुछ कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. एम हैमल ने उसे देखा और बहुत काइंडली उससे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पर पहुंचो लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू. कि टीचर ने उसे अवेयर किया कि हम तो तुम्हारे बिना ही आज क्लास शुरू करने वाले थे. मीन्स वी वर नॉट गोइंग टू वेट फॉर यू. आई जम्प्ड ओवर द बेंच. अभी तक भी फ्रांस को समझ में नहीं आया है कि क्लास में ऐसा एटमॉस्फेयर क्यों है, क्योंकि वो टाउन हॉल के बाहर तो रुका ही नहीं, उसे न्यूज़ के बारे में तो मालूम ही नहीं है. तो वो जल्दी से बेंच के ऊपर से कूदा एंड सैट डाउन एट हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt and the little black silk cap. अब टीचर के अटायर के बारे में, उनके कपड़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि उस दिन उन्होंने कुछ डिफरेंट ही कपड़े पहने थे. अब जब फ्रांस का फ्राइट, डर थोड़ा कम हुआ, तो उसने ऑब्जर्व किया कि टीचर एम हैमल ने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक सिल्की कैप पहनी हुई थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड. कैप पूरी एम्ब्रॉयडर्ड थी. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो वो कभी इंस्पेक्शन या प्राइज डेज पर ही पहनते थे, स्कूल में जब कोई स्पेशल ओकेजन होता था. उसके अलावा वो नॉर्मल क्लोथ्स में होते थे. तो आज कुछ ना कुछ स्पेशल होगा, ऐसा फ्रांस को एंटिसिपेशन हो गया. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. और सिर्फ यही एक रीज़न नहीं था, there was another reason also. Besides, इसके अलावा पूरा स्कूल काफ़ी strange और solemn, solemn is serious, serious look में था. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. लेकिन जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा फ्रांस को सरप्राइज़ किया वो ये था कि क्लासरूम के बैक बेंचेस जो यूजुअली एम्प्टी रहते हैं, जिन पर कोई नहीं होता, आज वहाँ विलेज पीपल बैठे हैं. विलेज के जितने भी एल्डर पीपल हैं वो बैठे हैं पढ़ने के लिए. एंड दे वर सिटिंग क्वाइटली, वो हमारी ही तरह चुपचाप बैठे हुए थे. वन ऑफ देम इज़ ओल्ड हॉजर, बूढ़े हॉजर हैं जिन्होंने 3 कॉर्नर वाली हैट पहनी है, ट्रायंगुलर शेप की. द फॉर्मर मेयर, पुराने पिछले मेयर हैं. फॉर्मर पोस्ट मास्टर भी बैठे हैं. एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और भी बहुत सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं. अब ओल्ड हॉजर के बारे में थोड़ा सा आगे डिस्क्रिप्शन है, विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड वर्थ नोटिंग ऑल्सो, क्योंकि चैप्टर के एंड में दोबारा उनके बारे में डिस्क्रिप्शन होगा कि हॉजर अभी इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन कैसे बैठे हैं और एट द एंड ऑफ द लेसन कैसे हैं. तो उनके थ्रू भी थोड़ा सा एटमॉस्फेयर को हाईलाइट करने की कोशिश की गई है कि उस लास्ट लेसन का इन ओल्ड विलेजर्स पर क्या इफ़ेक्ट था. एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई दिखने में बहुत सैड है. हॉजर के हाथ में एक ओल्ड प्राइमर है. प्राइमर इज़ द बिगिनर्स बुक, जो किसी भी लैंग्वेज को आप जब सीखना शुरू करते हैं तो एक प्राइमरी, एक बिगिनिंग में बुक दी जाती है जिसमें से आप साउंड्स, उस लैंग्वेज के बारे में जानना और बोलना सीखते हैं. तो एक पुरानी सी प्राइमर थी उनके हाथ में. थम्ब्ड एट द एजेस, किनारे उसके फटे हुए थे. एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज़, और बुक को उन्होंने अपने नीज़ के ऊपर, अपने घुटनों पर रखा हुआ था.
with his great spectacle lying across the pages. और उनका स्पेक्टिकल उनके पेज उस बुक के ऊपर पेजेस के ऊपर रखा हुआ था. अभी ये ओल्ड हॉजर का डिस्क्रिप्शन है और एंड में दोबारा आएगा. While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair. अभी मैं ये सब देखकर हैरान ही हो रहा था कि इतने में M. Hamill टीचर अपनी चेयर से उठ खड़े हुए एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और जैसे वो दिख रहे थे या जैसा उन्होंने पहले फ्रांस को अंदर आने के लिए परमिशन देते हुए जिस टोन में बोला था, वैसी ही ग्रेव इज़ सीरियस और जेंटल मीन्स पोलाइट, उतनी ही सीरियस और पोलाइट आवाज़ में उन्होंने कहा, माई चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू. आज जो मैं तुम्हें चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ ये आज फ्रेंच का लास्ट लेसन है. बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब जर्मन ही पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेन के सभी स्कूल्स में. बर्लिन इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी, तो जर्मनी से बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब एल्सेस और लॉरेन जो एक्चुअली फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अब वहाँ पर फ्रेंच ना पढ़ाकर जर्मन पढ़ाई जाएगी क्योंकि अब ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स जर्मनी के कंट्रोल में आ चुकी हैं. द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जर्मन पढ़ाने के लिए कल नए मास्टर आएंगे. एंड ऑब्वियसली एम हैमिल हैज़ टू लीव द वेरी नेक्स्ट डे, एंड दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन. आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. और क्योंकि ये लास्ट फ्रेंच लेसन है इसीलिए टीचर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हर बच्चा उस लेसन को बहुत अटेंटिवली सुने. What a thunderclap these words were to me. ये वर्ड्स मेरे लिए कितने बड़े शॉक की तरह थे, कैसे थंडर क्लैप की तरह थे. थंडर क्लैप इज़ लाइक अ शॉक, क्योंकि फ्रांस को पहली बार अभी पता चला है कि अब उन्हें फ्रेंच ना पढ़ करके जर्मन पढ़नी पड़ेगी. ओह द रिचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. तो यही वो न्यूज़ था जो टाउन हॉल पे लगा हुआ था, और अब उसे वो ब्लैक स्मिथ की स्टेटमेंट की आयरनी भी शायद समझ में आ गई. अब फ्रांस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है क्योंकि ये उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है, एंड ही इज़ इंट्रोस्पेक्टिंग, ही इज़ एक्सप्रेसिंग हिज डिसअपॉइंटमेंट एट द फैक्ट. बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो रहा है. वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मुझे तो अभी ये लैंग्वेज लिखनी भी नहीं आती, एंड आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और अब मैं इससे ज़्यादा सीख भी नहीं पाऊँगा. आई मस्ट स्टॉप देयर, अब मुझे यहीं रुकना पड़ेगा. एंड हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, और अब मुझे कितना सॉरी फील हो रहा है कि मैंने अपने लेसन्स को ठीक से लर्न नहीं किया और ज़्यादा टाइम डिवोट नहीं किया अपनी स्टडीज़ के लिए. उसे रिग्रेट हो रहा है कि क्यों वो कभी बर्ड्स के एग ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता था स्कूल से बंक लेकर, या कभी कभी स्लाइडिंग के लिए झूले झूलने के लिए क्यों चला जाता था. माई बुक्स, सडनली उसके एटीट्यूड में इतना ड्रास्टिक चेंज आया कि अब उसे रिग्रेट होने लगा कि उसने स्कूल के लेसन्स क्यों बंक किए. जो उसकी बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूसेंस अ व्हाइल अगो, थोड़ी देर पहले उसे इतनी बड़ी न्यूसेंस, इतनी बड़ी डिस्टर्बेंस, परेशानी का कारण लग रही थी. सो हैवी टू कैरी, उठाने में भी बहुत हैवी लग रही थी. उसकी ग्रामर की बुक, हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, सडनली वो उसे अपने ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लगने लगी. दैट आई कुडंट गिव अप. और क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स होते हैं उनसे आप कभी भी दूर नहीं होना चाहते हैं, आप हमेशा उनके साथ रहना चाहते हैं, तो सडनली फ्रांस के एटीट्यूड में भी इतना चेंज आया कि उसे लगा कि ये बुक्स तो उसके ओल्ड फ्रेंड की तरह हैं और वो उसे नहीं छोड़ना चाहता था. एम हैमिल टीचर, उनके लिए भी फ्रांस का एटीट्यूड सडनली चेंज हो गया. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Cranky. The word cranky means strict. एम हैमिल के लिए भी उसका एटीट्यूड इतना चेंज हो गया कि वो उनके रूलर के बारे में, उनकी डांट के बारे में, मार के बारे में सब कुछ भूल गया. ये भी भूल गया कि वो कितने स्ट्रिक्ट हैं, और उसे उनके लिए बुरा लगने लगा. पुअर मैन, वो उनके लिए सोच रहा है कि बेचारा पर्सन, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है उसे टीचर के लिए. इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज संडे फाइन क्लोथ्स, एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. सडनली उसके ऊपर एक अवेकनिंग की तरह उसे रियलाइजेशन हुआ कि क्यों टीचर ने संडे क्लोथ्स पहने हैं जो वो उनके बेस्ट क्लोथ्स थे, क्यों क्लासरूम में आज विलेज एल्डर्स भी आकर बैठे हुए हैं. ये सब रीजंस अब उसे समझ में आने लगे.
इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। शायद रीज़न यही था उन विलेज एल्डर्स का भी स्कूल में आने का, कि वो भी सॉरी फील कर रहे थे कि वो स्कूल ज़्यादा आकर उन्होंने क्यों नहीं फ्रेंच लैंग्वेज सीखी। ये उनका वे था, उनका तरीका था टीचर को थैंक करने का फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस। मार्क दिस लाइन, टीचर ने, एम हैमल ने फेथफुली उस विलेज को एल्सेस में 40 ईयर्स तक फ्रेंच पढ़ाई थी। तो ये विलेज एल्डर्स टीचर को थैंक करने आए थे कि उन्होंने 40 ईयर्स तक अपनी सर्विसेज इस विलेज को दी और अब नेक्स्ट डे उन्हें छोड़कर जाना है। और ये उनका तरीका था ना सिर्फ टीचर को थैंक करने का, बल्कि अपनी कंट्री की तरफ भी रिस्पेक्ट शो करने का, दैट वाज देयर्स नो मोर, जो अब उनकी नहीं रही। अब उनकी कंट्री नहीं है, नाउ दे आर जर्मन पीपल। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस आई हर्ड माई नेम कॉल्ड। अब जब सडनली ये सब कुछ उसके दिमाग में अभी चल रहा था तो उसे अपना नाम सुनाई दिया, फ्रांस, विच मेंट कि टीचर चाहते हैं कि फ्रांस खड़ा होकर रिसाइट करे होमवर्क को, दैट इज़ द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participles all through, very loud and clear and without one mistake? टीचर चाहते थे कि फ्रांस खड़ा होकर होमवर्क रूल ऑफ पार्टिसिपल सुनाए, और ना सिर्फ सुनाए बल्कि जब वो सुनाएगा तो ही शुड बी वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ज़ोर से क्लियरली उसे सुनाना है, एंड विदाउट वन मिस्टेक। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर। लेकिन पहले ही वर्ड पर वो मिक्सअप हो गया और वहीं खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, डेस्क को पकड़ रखा है उसने। माई हार्ट बीटिंग, उसका हार्ट ज़ोर से बीट हो रहा है। ही इज़ अफ्रेड एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और उसके अंदर इतना साहस भी नहीं है कि वो ऊपर टीचर की तरफ देखे। आई हर्ड एम हैमल से टू मी, और जो नेक्स्ट सुनाई दिया फ्रांस को वो एम हैमल के कुछ वर्ड्स थे। ही वॉज सेइंग, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुम्हें खुद ही बुरा लगना चाहिए। सी हाउ इट इज़, देखो अब क्या कंडीशन आ चुकी है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्व्स, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई लर्न इट टुमारो। हमारी हैबिट होती है यूजुअली आज के काम को कल पर टालने की, तो हम यही करते रहे, आज के काम को कल पर टालते रहे और यही सोचते रहे कि कितना समय पड़ा है, मैं सीख लूँगा फ्रेंच लैंग्वेज, कल सीख लूँगा, कल कर लूँगा। एंड द आयरनी इज़ दिस इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन टेंडेंसी। हर इंसान की यही हैबिट होती है कि आज के काम को कल पर टालना। एंड नाउ यू सी वेयर यू हैव कम आउट, वी हैव कम आउट, और अब देखो क्या कंडीशन आ चुकी है कि आज लास्ट लेसन है, इसके बाद उन्हें फ्रेंच सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। एंड दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेस, और ये एल्सेस की ही ट्रबल है, पूरे एल्सेस की, सिर्फ फ्रांस की प्रॉब्लम नहीं है, पूरे एल्सेस के साथ यही प्रॉब्लम है, दैट शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वहाँ के लोग लर्निंग को, पढ़ाई को कल पर टालते रहते हैं। Now those fellows out there will have the right to say to you how it is. You pretend to be Frenchmen and you can neither speak nor write your own language, but you are not the worst poor little France. We have all a great deal to reproach ourselves with. और अब देखो क्या कंडीशन आ गई है कि अब जो लोग हमें टेक ओवर करने वाले हैं, जो जर्मन्स हैं, अब उन्हें ये अधिकार मिल गया है कि वो हमें ये कहकर रिडिक्यूल कर पाएंगे, चिढ़ा पाएंगे, हमारा मजाक उड़ा पाएंगे कि तुम तो बड़े प्रिटेंड करते हो कि तुम फ्रेंचमैन हो, बट ना तो तुम्हें फ्रेंच बोलनी आती है ना लिखनी आती है, तो तुम कैसे फ्रेंचमैन हो। एंड दिस इज़ द रियलिटी टू, आप अपने आप को फ्रेंचमैन मानते हो लेकिन आपको वो लैंग्वेज ना तो पढ़नी आती है ना लिखनी आती है, तो आप कैसे फ्रेंचमैन हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस। लेकिन टीचर ने आगे बात को संभालते हुए कहा कि सिर्फ ये फ्रांस ही नहीं है जो ऐसा है, ये प्रॉब्लम पूरे के पूरे एल्सेस की है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू reproach ourselves with. Now this is another important statement on which questions also sometimes come, कि टीचर को लगा कि ये सिर्फ फ्रांस की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि अगर फ्रांस ऐसा है तो उसमें उन सब का दोष है, उन सब बड़े लोगों का दोष है। तो वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू reproach ourselves मीन्स कि हम सबको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, हम सबको अपने अंदर देखना है कि हम कैसे हैं, हम सबकी ही कहीं ना कहीं मिस्टेक है। द फर्स्ट पर्सन टू ब्लेम इज़ हिज पेरेंट्स। फ्रांस के जो पेरेंट्स थे, दे वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव हिम लर्न। वो इतने एंक्शियस नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि फ्रांस ज़्यादा स्कूल जाए। दे प्रेफर्ड टू पुट हिम
टू वर्क ऑन अ फार्म और द मिल्स। उन्हें लगता था कि अगर एक दिन स्कूल नहीं जाएगा फ्रांस और उसके बदले में किसी फार्म पर जाकर खेत पे जाके काम करेगा या किसी मिल में जाके अगर एफर्ट कर लेगा, अपने पेरेंट्स की हेल्प कर देगा, तो वो एक दिन का पैसा थोड़ा एक्स्ट्रा कमा लेंगे। लेकिन स्कूल एक दिन ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये पेरेंट्स की टेंडेंसी थी। एंड आई और टीचर ने नेक्स्ट अपने आप को भी ब्लेम किया। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरी भी गलती है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स। टीचर ने अपने आप को भी ब्लेम किया कि मेरी भी मिस्टेक थी कि कभी कभी मैं भी तुम्हें भेज देता था कि स्कूल में आज ये लेसन मत करो या ये पर्टिकुलर पीरियड मत अटेंड करो, बल्कि ऊपर जाकर मेरे फ्लावर्स को वाटर दे आओ, मेरे प्लांट्स को पानी दे आओ। और जब मैं कभी फ़िशिंग पे जाने का मेरा मन होता तो मैं तुम्हें हॉलीडे देता था। दैट वाज आल्सो टीचर्स मिस्टेक। तो टीचर ने अपने आप को दो चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल माना कि कभी फ़िशिंग पे जाने के लिए स्कूल ऑफ कर देना और कभी कभी क्लास मिस करवा के उन्हें प्लांट्स को वाटर देने के लिए भेजना। और पेरेंट्स भी थे ब्लेम पर। तो देयर वर टू पीपल अदर देन द स्टूडेंट्स हु वर टू ब्लेम for their condition like this, that they have not been able to learn their language more. अगर पेरेंट्स ने उन दिनों में बच्चों को स्कूल आने दिया होता जब उन्हें फार्म या मिल पर भेजा गया स्कूल बंक कराकर, या टीचर फिशिंग पे जाने के लिए उन्हें हॉलीडे ना देते, या उन्हें अपने प्लांट्स को वाटर करने के लिए ना भेजते, तो शायद इन बच्चों की लर्निंग का स्टैंडर्ड कुछ ज़्यादा होता, वो कुछ ज़्यादा सीखे होते। Then, from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. इसके बाद M. Hamel फ्रेंच लैंग्वेज को प्रेज़ करने लगे। उन्होंने अपने शब्दों में बताना शुरू किया कि फ्रेंच लैंग्वेज वर्ल्ड की कैसे बेस्ट लैंग्वेजेस में से एक है। Now, on the next page, there is a description in the form of a map कि जो रेड से सर्कल है वो देखिए लॉरेन और एल्सेस दिख रहा है। ये फ्रांस की बॉर्डर पर दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और साथ में जर्मनी है। तो हुआ ये था कि इस प्रूशियन वॉर में 1870-71 में फ्रैंको प्रूशियन वॉर हुआ जिसमें प्रूशिया की जीत हुई। तो इसीलिए जर्मनी ने फ्रांस की ये दो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कर लिया और उन्हें टेक ओवर कर लिया था। लेकिन एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर कि ये कंडीशन अब नहीं है। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 1918 में फ्रांस ने इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को दोबारा अपने अंडर कर लिया था। द टीचर वॉज प्रेजिंग द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। नॉट ओनली द ब्यूटिफुल, इट्स द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर लैंग्वेज भी है, इसको समझना बहुत आसान है। द मोस्ट लॉजिकल, लॉजिकल है सबसे ज़्यादा। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग्स अस एंड नेवर फॉरगिव इट। हमें इसे अपने मन में हमेशा गार्ड करके रखना है और इसे कभी भूलना नहीं है। बिकॉज when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they have the key to their prison. टीचर ने बताना शुरू किया कि लैंग्वेज की किसी भी इंसान की लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस होती है। हम भी इसे इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन द एब्सेंस ऑफ अ लैंग्वेज। अगर कोई लैंग्वेज हमें नहीं आती होगी तो हम अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अपनी बात को दूसरे तक कैसे पहुंचाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए लैंग्वेज की हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस है। मदर टंग तो इट्स लाइक कि हमारी एक इनबॉर्न हैबिट होती है, हमारी बाय बर्थ एक हैबिट है जो हमने बचपन में सीखी है अपनी मदर टंग, और उसको हम मरते दम तक नहीं भूल सकते। तो अपनी लैंग्वेज को गार्ड करके रखना बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे कि अगर आप कभी प्रिजन में फंस गए तो वो आपके लिए की तरह एक्ट करता है। क्योंकि अगर ये एल्सेस और लॉरेन के लोग अगर अब जर्मनी के अंडर जाने के बाद अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को भूल जाएंगे, उन्हें फ्रेंच ही नहीं आती होगी और वो जर्मन पढ़ना सीख जाएंगे, तो उनके अंदर से फ्रांस के लिए इमोशंस भी ख़त्म हो जाएंगे। जब उन्हें फ्रेंच ही नहीं आती होगी तो फ्रांस के साथ उनका कोई लिंक ही नहीं रहेगा और वो कभी इस बारे में सोचेंगे ही नहीं कि अपने आप को फ्री करा के वापस अपने मदर नेशन के पास वापस आना है। Then he opened a grammar and read us our lessons. From here the classes begin. उस दिन के पीरियड्स अब से शुरू हुए। लास्ट लेसन में पहले टीचर ने उन्हें ग्रामर का लेसन दिया, उन्हें लेसन पढ़ के सुनाया ग्रामर का, और फ्रांस बहुत ज़्यादा अमेज्ड, सरप्राइज्ड फील कर रहा है कि उस दिन उसे सब कुछ कितने अच्छे से समझ में आ रहा था। टीचर जो भी पढ़ा रहे थे
एवरीथिंग सीम्ड टू ईजी टू हिम। और उसे लगा कि इसका रीज़न क्या हो सकता है। इसके दो रीज़न हो सकते हैं कि या तो आज से पहले कभी उसने इतनी केयरफुली, इतनी अटेंशन के साथ कभी सुना ही नहीं था टीचर को, या फिर ये भी हो सकता है कि टीचर ने भी आज तक कभी इतने पेशेंस के साथ नहीं पढ़ाया था। वट एवर द रीज़न मे बी, द थिंग वॉज कि उस दिन फ्रांस को हर चीज़ समझ में आ रही थी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था कि जैसे टीचर जाने से पहले हमें हर वर्ड, हर चीज़ सुना देना चाहते हो, सिखा देना चाहते हो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। एंड टू पुट इट ऑल इन टू आर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और सब कुछ ही उन लोगों के दिमाग में एक ही बार में डाल देना चाहते हो। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। ग्रामर के बाद जो सेकेंड लेसन था, सेकेंड सब्जेक्ट, दैट वाज ऑफ राइटिंग। उस दिन एम हैमल उनके लिए घर से न्यू कॉपीज़ लेकर आए थे, जिसमें उन्होंने ब्यूटीफुल राउंड हैंड राइटिंग में लिखा था, फ्रांस एल्सेस, फ्रांस एल्सेस। थ्रू दिस ही माइट मीन कि फ्रांस और एल्सेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कभी अलग नहीं होंगे। दे लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्मॉल रूम। और ये जब फ्रांस एल्सेस ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में कर्व में लिखा हुआ था टीचर ने, तो ये ऐसे लग रहा था कि ये जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स हैं जो क्लासरूम में हर जगह फ्लोट कर रहे हैं। और इनकी जो रॉड है जहाँ पर इन्हें लगाया गया है वो बच्चों के डेस्क के ऊपर था। ये ऐसा इमेजिन कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स। यू ऑट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क एंड हाउ क्वाइट इट वाज। उस दिन क्लास का एटमॉस्फेयर देखने लायक था। देखना चाहिए था कि क्लासरूम में कितना पिन ड्रॉप साइलेंस था, सब कुछ बिल्कुल क्वाइट था, और कैसे सब लोग क्वाइटली काम कर रहे हैं। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। अगर कोई साउंड बीच में सुनाई भी दे रहा था तो वो सिर्फ पेपर के ऊपर पेन चलने का साउंड था। वंस सम बीटल्स फ्लू इन। एक बार कुछ बीटल्स अंदर उड़ते हुए आ गए क्लासरूम में। इट माइट हैव हैपन विद यू ऑल्सो। कभी क्लास में कोई इंसेक्ट या कोई और रॉडेंट या कोई भी अगर एंटर करता है तो क्लासरूम में कितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। बच्चे अपनी सीट्स पर जंप करने लगते हैं जस्ट टू अवॉइड दैट क्रीचर। लेकिन उस दिन जब वो बीटल उड़ता हुआ रूम में आया, किसी ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, छोटे छोटे बच्चों ने भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? वो बच्चे सब अपनी पढ़ाई में ही बिजी थे, सबका ध्यान अपनी नोटबुक्स के ऊपर था। छत पर कुछ पिजन्स की आवाज़ आ रही थी। द साउंड ऑफ पिजन्स इज़ रेफर टू एज कू। कू करते हैं पिजन्स। तो जो उनका कू का साउंड था वो बहुत लो, बहुत धीमी आवाज़ में सुनाई दे रहा था। लेकिन सडनली जब फ्रांस का ध्यान उन पिजन्स की तरफ गया तो वो अपने मन में सोचने लगा कि ह्यूमन बींग्स हैव दिस पावर टू एनफोर्स देयर ओन पावर ऑन टू अदर ह्यूमन बींग्स। सभी ह्यूमन बींग्स ऐसे करते हैं, जो ज़्यादा पावरफुल हैं वो दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर अपनी पावर को एक्सरसाइज करके, अपनी पावर दिखा के कि मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हूँ तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। बट दिस थिंग कैन नॉट हैपन विद अदर क्रीचर्स, अदर स्पीसीज ऑफ द एनिमल्स और द बर्ड्स इन द नेचर। वो सब फ्री हैं। कभी हमने नहीं देखा किसी बर्ड ने दूसरे बर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश की हो, किसी एनिमल ने दूसरे एनिमल को कंट्रोल करने की कोशिश की हो। दे आर ओनली कंसर्न्ड विद देयर फूड एंड नथिंग एल्स। तो क्या ह्यूमन बींग्स अपनी इस पावर को नेचर के ऊपर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं? एंड द आंसर इज़ नो। जर्मन्स ने फ्रेंच पीपल को तो फोर्स कर दिया एल्सेस और इनके लोगों को कि अब उन्हें जर्मन बोलनी पड़ेगी, पर क्या वो इन पिजन्स को फोर्स कर सकते हैं कि अब तुम्हें भी कू जर्मन में करना पड़ेगा? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। Whenever I looked up from my writing, तो मैंने देखा कि एम हैमल मोशनलेस बैठे हुए हैं अपनी चेयर में, बिना किसी मोशन के चेयर में बैठे हुए हैं। एंड ही वॉज गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। कभी एक चीज़ को देखते, कभी दूसरी चीज़ को, जैसे कि वो हर चीज़ को अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते हों कि उस दिन लास्ट लेसन के ड्यूरेशन में वो स्कूल रूम कैसा दिख रहा था। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस। पिछले 40 years से वो एक ही स्कूल में पढ़ा रहे थे। यही गार्डन था इस क्लासरूम की विंडो के बाहर। उनकी क्लास ऐसे ही पिछले 40 years से उनकी आंखों के सामने रही है, जस्ट लाइक दैट।
सिर्फ जो चेंजेस आए हैं वो ये आए हैं कि डेस्क और बेंचेस थोड़े पुराने हो गए हैं तो उन्हें रिपेयर कराना पड़ा है। गार्डन में वॉलनट ट्री है वो बड़ा हो गया है। हॉप वाइन, जो ग्रेप वाइन होती है जो उन्होंने खुद ही प्लांट की थी, वो विंडो के साथ साथ ट्वाइन होके रूफ तक पहुंच गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल। इन सब चीज़ों को छोड़ना उनके लिए कितना डिस्टर्बिंग रहा होगा, कितना बुरा लग रहा होगा उन्हें कि 40 ईयर्स से जहाँ वो रह रहे थे, विच वॉज लाइक हिज होम, उस जगह को उन्हें छोड़ के जाना है। पुअर मैन। जब वो सुन रहे थे, जब हम लोग क्लास में राइटिंग के लेसन्स कर रहे हैं, तो ऊपर उनके घर पर उनकी सिस्टर की आवाज़ आ रही है दैट शी वॉज पैकिंग हर ट्रंक्स। वो सामान पैक कर रही है क्योंकि अगले ही दिन उन्हें कंट्री को छोड़कर जाना है। बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। एम हेमल के बहुत सारे करेक्टर स्केच, बहुत सारे करेक्टर ट्रेट्स हमें इस चैप्टर में अब तक हाईलाइट हो चुके हैं, और अभी जो करेक्टर ट्रेट एक हाईलाइट हो रहा है, दैट ही हैड द करेज टू हियर इवन द लास्ट लेसन टू द वेरी लास्ट। अब अगर वो चाहते तो वो इस लास्ट लेसन को छोड़ भी सकते थे कि नहीं पढ़ाते, आज एक दिन पढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन नहीं, वो इतने करेजियस थे कि उन्होंने लास्ट लेसन को भी पूरे एंड तक कंप्लीट किया। राइटिंग के बाद जो थर्ड सब्जेक्ट था दैट वाज हिस्ट्री। उसके बाद बेबीज़ ने साउंड चैंट करने शुरू किए। हिस्ट्री के बाद दे वर चैंटिंग डिफरेंट साउंड्स लाइक बा बे बो बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉजर बैठे हैं। नाउ द सीन हैज़ अगेन शिफ्टेड टू ओल्ड हॉजर। उन्होंने अब अपना स्पेक्टिकल पहन लिया है जो पहले उनकी प्राइमर के ऊपर पड़ा हुआ था, और उनकी प्राइमर उनके दोनों हाथों में है। स्पेल द लेटर्स विद देम। वो उन लेटर्स को, जो उन्हें साउंड्स पढ़ाए जा रहे हैं, वो उन लेटर्स को उनके साथ साथ स्पेल कर रहे हैं। आप देख सकते थे दैट ही टू वॉज क्राइंग, कि उनकी आंखों में आंसू थे, उनकी वॉइस में इमोशंस थे, इमोशंस के कारण उनकी वॉइस ट्रेम्बल हो रही थी। और कितना फ़नी सीन था कि उनको इस तरीके से देखना कि देखने वाला उन्हें देखकर हंसना और रोना, दोनों इमोशंस एक साथ देखने वाले के मन में भी आ रहे थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट वेरी लास्ट लेसन। फ्रेंड्स को भी वो लास्ट लेसन कितनी ज़्यादा माइन्यूटली हर डिटेल के साथ याद है कि उसने हर स्मॉल चीज़ को भी कितने ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। सडनली चर्च क्लॉक में 12 का साइन स्ट्रक हुआ। 12 बजे, 12 घंटों की आवाज़ सुनाई दी कि 12 बज चुके हैं, मिड डे हो चुका है। And then the Angelus, at the same moment, the trumpets of the Perugian returning from drill sounded under our windows. Angelus is the midday prayer. उसके बाद 12 बजे वाली प्रेयर की चर्च से आवाज़ आने लगी। इसके बाद प्रूजियन सोल्जर्स की ट्रम्पेट की आवाज़ आने लगी। नाउ दे हैव कम इनसाइड द सिटी, और स्कूल की ही विंडो के नीचे से वो ड्रिल करते हुए जा रहे हैं। प्रूजियन सोल्जर्स का सिटी के अंदर आने का क्लियर मतलब था कि अब एल्सेस उनके अंडर है। एम हैमल उठे। ही वॉज लुकिंग वेरी पेल, बहुत वीक लग रहे हैं वो, अपनी चेयर पे खड़े हुए, चेयर के सामने। मुझे वो इतने टॉल कभी नहीं दिखे थे। नाउ एम हैमल लुक्ड सो टॉल, इसका जो फिगरेटिव मीनिंग है, लिटरल मीनिंग तो होता है कि उनकी हाइट इंक्रीज हो गई, बट इट्स नॉट लिटरल मीनिंग। इसका फिगरेटिव मीनिंग है कि उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट फ्रेंड्स ने अपने मन में एम हैमल के लिए कभी नहीं फील की थी। एंड ही सडनली स्टार्टेड सेइंग माई फ्रेंड्स आए, लेकिन किसी चीज़ ने उन्हें चोक कर दिया, उनका गला रुक गया, इमोशंस ओवरफ्लो होने लगे। ही वॉज ओवरवेल्म विद इमोशंस एंड ही कुड नॉट स्पीक एनी फर्दर। तो उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ अपना फेस किया। ही टुक अ पीस ऑफ चॉक, और अपने अंदर जितनी भी माइट थी, माइट इज़ पावर, अपनी सारी पावर को उन्होंने इकट्ठा किया और जितना बड़ा बड़ा हो सकता था ब्लैक बोर्ड पे 3 वर्ड्स लिखे, एंड दोज वर्ड्स वर विवे ला फ्रांस, विच मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, कि फ्रांस जिंदा रहेगा, हमेशा रहेगा। देन ही स्टॉप्ड, लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, अपने सर को उन्होंने वॉल के अगेंस्ट झुकाया, बेंड किया, एंड विदाउट अ वर्ड, अब क्योंकि वो कुछ बोल नहीं सकते तो उन्होंने एक जेस्चर किया, इशारा किया अपने हाथ से, दैट स्कूल इज़ डिसमिस्ड यू मे गो, कि स्कूल ख़त्म हो चुका है, तुम लोग जा सकते हो। अब उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो बोल पाते, तो उन्होंने हाथ से सिग्नल करके बोल दिया था कि स्कूल डिसमिस हो चुका है और तुम लोग जा सकते हो। एंड सो द लास्ट लेसन एंडेड। अब इस लास्ट लेसन में कितने सारे एम हैमल के ट्रेट्स सामने आए।
फ्रांस के व्यू में क्लास के लिए चेंज, टीचर के लिए चेंज, और ओल्ड हाउसर जैसे ही ओल्ड विलेजर्स के मन में क्या क्या इमोशंस थे. ऑल दीज थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड वेरी ब्यूटिफुली in this chapter. So here the chapter ends. Hope you have a good day.